पिछले actually after COVID के बाद से it has been thrown into our lives और AI is the next level era innovation which has been inculcated in the minds of professionals and of course students. अच्छा सबसे पहले तो समझने की बात ये कि हमारा deep purpose क्या है as a student. अगर मैं इन दो segmentation करूँ professional life को और students को. So first of all we have gathered for the students. So let me rephrase in a way कि students बड़ा अच्छा question किया है एक साथ हैं. I'm sorry मैं नाम नहीं recap कर पा रहा हूँ. उनका कि जी we are juggling between YouTube. आपको आवाज आ रही है? जी. So we are juggling between YouTube, अपने assignments, AI, and there is a lot of things which are happening in between. So जरूरत इस अमर की है कि अगर आपको देखें जैसे कि मेरे साथ एराज साहब ने भी कहा कि you have to ease up that work which you have been doing all around. In our heydays जब हम पढ़ते थे तो हम अपनी studies मैंने O levels किया फिर maths com किया तो उसमें हम अखबार भी पढ़ते थे हम O levels की books भी पढ़ लेते थे और वो हमारे लिए बड़ा laborious काम था और इनफैक्ट आज तो आप लोग बहुत लकी हैं कि हम डिक्शनरी खोल के एक वर्ड का मीनिंग देखते थे लॉन्गमैन की थी ऑक्सफोर्ड की थी. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट आपके लिए एजुकेशन का जो फ्लो है और इनफ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इजी. सो कमिंग बैक टू डी पर्पस आपको करना क्या है. एआई को डाटा हम नहीं देना है और एक्चुअली हु इज मोर इंटेलिजेंट इफ आई मे आस्क. सो ह्यूमन इज मोर इंटेलिजेंट because human psyche जो उसी ने एटम बम बनाया उसी ने आपके कंप्यूटर्स बनाए उसी ने AI का बज़वर्ड क्रिएट किया उस पे काम हो रहा है. मशीन लर्निंग AI इट्स ऑल अबाउट आजकल वर्चुअल असिस्टेंट्स की बात हो रही है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार हम बिकॉज़ वी आर फ्रॉम कॉन्टैक्ट सेंटर इंडस्ट्री तो कह रहे हैं कि जी वर्चुअल एजेंट्स आ गए और आने वाले हैं. सो यू नीड टू ईज अप योर लाइफ. इसका जो फ्लिप साइड है या नेगेटिव पॉइंट है बिफोर आई कम अक्रॉस towards the corporate segmentation उसमें सबसे जरूरी है कि you have to have supremacy, you have to have that power. यार I have to have that thought process. अगर आप अपने thought को kill कर देंगे and you will be sitting back कि जी मेरी assignment भी हो जाए मेरा proposal भी बन जाए तो where is that strategic mind frame? So you have to dominate, you have to be the CEO of your own decision. That AI synergy will create the ease in your work. This is A for the student's perspective. अब हम बात करते हैं कि how organization can take up. मेरे बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं and I respect कराची इलेक्ट्रिक को मेरा कस्टमर भी है. जब बोल दूँ इजाज़त शुक्रिया. Actually, so कराची इलेक्ट्रिक के अंदर SAP HANA I think HANA 4 की implementation हो रही है SAP. So उसमें मुझे कोई and you will be the good part, the positive thing about K Electric. अगर मैं आज से 10 या 15 साल पहले की बात करूं तो it's upside down. The people, the professional people who have joined this organization with all due respect and they have taken Karachi Electric to the next level. और मैं even though आप डिजिटल चैनल्स की बात करें आप उनकी मोबाइल ऐप पे जाएं आप उनके मतलब कॉल सेंटर कॉल करें you will get a response in seconds. ठीक है वो अलग बात है कि लाइट आती नहीं आती but they will respond you instantly and they will provide you that needed help and support and of course the timers as well. अब हम अगर इंटरनली बात करें बिकॉज हमारा भी उनसे जब आप डिजिटल करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इनसाइड सो सर की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि progression of documentation which is handling inside and the approval processes it has to be in not seconds you can take a day or two. And when you are implementing AI and complementing AI along with these high-end solutions, और ये सब solutions locally manufactured नहीं, ये सब imported solution है, ठीक है? So the speed and commitment has to be there in order to wrap up the work. Because एक organization को pinpoint नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे पाकिस्तान की organizations का एक problem है कि उसमें 8 या 7 departments involved होते हैं, ठीक है? और उन एक डिपार्टमेंट के अंदर भी 10 लोग या 5 लोग इन्वॉल्व होते हैं एक सेगमेंट या एक प्रोडक्ट को लेके. सो इट हैज टू बी अ वर्क व्हिच नीड्स टू बी स्पीड अप एंड इट हैज टू बी डन इन विद लॉट ऑफ गुड एंड फास्ट ट्रैक सो ताकि आपका काम इजी हो और आपका जो फ्लो है या प्रोडक्टिविटी है वो वैल्यू क्रिएट करे ऑर्गेनाइजेशन के लिए. आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. So I have some more questions, but मुझे messages आ रहे हैं कि please
students के कुछ सवालात हैं, so we'll take those first and then I'll come back. Then we get you some water. So can I make a point? जी. I don't know how many of you from the student side are really aware about digital transformation. So digital transformation को मैं आपको एक example के through explain करूँगा, and probably from that example you can probably appreciate what it really takes. Back probably 50 years back, or more than 50 years back, the way to see a picture was through a magnetic tape, right? Now that magnetic tape was initially वो gramophones के ऊपर एक circular से move करता था, उसका form change हुआ, फिर वो tape में आ गया. Probably कुछ आपने ऐसे होंगे जिन्होंने audio cassettes देखे होंगे, कुछ ने video cassettes देखे होंगे. फिर उस वीडियो कैसेट्स के अंदर जो रिकॉर्डिंग होती थी वो एनालॉग होती थी. फिर यहाँ पे एक वेंडर आया था पल्स ग्लोबल के नाम से. I don't know how many of you remember that पल्स ग्लोबल. उसने डिजिटल प्रिंटिंग शुरू की on the same tape. That has a more refined image quality, बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस था. Then उसके बाद डिजिटल रेवोल्यूशन आया और उसने उस मैग्नेटिक जो डिस्क होती थी जो कि DCR में लगती थी, उसने उसको एक कॉम्पैक्ट डिस्क में कन्वर्ट कर दिया. फिर वो कॉम्पैक्ट डिस्क के ऊपर आपके पास फिर नया वर्जन आया जिसके अंदर आपके पास DVDs आ गई. Again that was digitalization getting to the next stage. उसके बाद क्या हुआ कि आपके पास होम बॉक्स ऑफिस आ गया. And this is where the digital revolution, digital transformation took place. Before that you have to watch a CD and you watch a movie. जब Netflix आया आपके पास, you had a subscription and you can watch the movie at your disposal, at your way, without even buying anything, without even inserting anything. Now this change actually required or took place in space of 50 years. This is how tough a digital transformation journey is. अब जो इस वक्त पुश है AI ने भी कुछ दे दिया है, उसने उसको मैंने रिसर्च कर रहा था इलम्स के प्रोफेसर की, and he has said that space has now come down 20 times less. So the pressure is 20 times more, which means that we have now a demand and supply flip. Previously the supply was there, but the demand was not there. Now the supply is abundant and the demand is also abundant, and the user is democratized. And this is where the real challenge is. So we just wanted to give you a feeler of digital transformation and how it really happens in real life, so that you can have a flavor कि अगर organization में ऐसे करना होगा तो वो ये काम कैसे करेगी. ठीक है, thank you sir for the time. Yeah. So we have a question. Sorry. So I would start from a very layman question that starts from the transformation, but eventually when we are talking about transformation, we are talking about human impact, the impact that would happen on the human. तो उसमें अगर हम human impact की बात करें तो वो learning वाली साइड पे भी चला जाता है. So learning AI and the AI driven transformation. We all remember बचपन में क्या आता था 09007860 telephone, right? And वो इतना इंग्रेव कर दिया था हमारे माइंड में कि अभी तक हमें याद है. But when smartphones came and उसके बाद हमारी मेमोरी में नंबर्स रहना बंद हो गया. हार्डली हमें 4 से 5 नंबर याद होंगे इंपॉर्टेंट लोगों के. Same goes when we are implementing AI in our businesses, right? So हमारी जैसी जनरेशन जो कि 15 seconds की एक वीडियो देखेगी and then it would scroll up, वो अगर AI से एक सवाल कर लेगी उसको जवाब मिल जाता है. Even in the business and corporate world, how do you engrave in that mind कि आपको AI को लर्न करना है, but AI के साथ खुद भी लर्न करना है? Because for example, if I use AI for everything for like 2 years down the line and I don't learn anything, I know that ये बंदा टूल करके दे देगा, but down the line अगर मुझसे कोई I know I need knowledge, I need to have my knowledgeable skills. How will I activate my cognitive skills?
So it's just a baseline question because we are learning AI, but learning with AI to be a part of this transformation is something I'm concerned about. Thank you. So, thank you very much for the question. If I understand it correctly, the question is कि हम AI सीखें या ना सीखें? Actually, AI सीख रहे हैं, but for example, we are सिर्फ AI सीखना या AI के साथ अपने cognitive skills की भी बात करना. For example, एक बहुत tricky question है, एक बहुत basic example ले रहा हूँ. Chemical chemistry से related चीज है. मुझे वो पूछनी है. मैंने AI से पूछी and I just copied it down. But for example, later on अगर मैं सारी चीजें इसी तरह करता रहूँगा तो where is my cognitive skills? तो मैं AI तो learn कर रहा हूँ कि how to use it for my benefit, but I have to keep my cognitive skills and critical thinking skills active. They are only active when I'm working and using it for some higher purpose. So there should be hierarchy, if I'm not wrong. बिल्कुल ठीक है. I can answer your question. Thank you very much. देखिए ये होता क्या है कि जब कभी किसी टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू करते हैं तो साथ में बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजीज आना शुरू हो जाती है. जब हम AI की बात कर रहे होते हैं तो पहली बात मैं just give you my personal, many of you may not agree or disagree with that, लेकिन मैं समझता हूँ कि AI सब कुछ सीखना चाहिए, सबको यूज करना चाहिए और जितने आपको असाइनमेंट्स बनाने चाहिए, ChatGPT बनाने चाहिए, it should be understandable, it should be the way it should be done. पॉइंट ये है कि जब हम बात कर रहे होते हैं AI की और Gen AI की, तो दोनों में डिफरेंस है. इस वक्त फोकस कर रहे हैं थोड़ा सा Gen AI के ऊपर के हम बात कर रहे हैं कन्वर्सेशनल AI के ऊपर. हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक डिवाइस है, उसके सामने प्रॉम्प्ट आ रहा है, प्रॉम्प्ट में सवाल लिखता हूँ, मुझे कोई जवाब मिल जाता है. जवाब कितना सही होता है नहीं होगा ये एक अलग बहस है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ डाटा जो उसमें गया है. वो गलत भी हो सकता है, तो आप आंखें बंद करके एतबार नहीं करते. लेकिन वक्त के साथ साथ ये मैच्योरिटी आना शुरू हो जाएगी, डाटा आना शुरू हो जाएगा. ChatGPT बना कैसे था? कॉल नॉट डाटा पे जाके देख लें, सारे इंटरनेट का डाटा उठाया, उठा के उन्होंने डाला. जुलाई 2022-23 तक का उन्होंने उठाया था. उसके बाद से बड़ा रिसेंट आना शुरू हो गया. तो आप रिसेंट बातें उससे पूछेंगे शायद सुना बताओ, लेकिन रिसेंट बातें आती चली जाएंगी, वो ऑटोमेटिकली लर्न करना शुरू कर जाएगा. देखिए AI के बारे में मिसकंसेप्शन है थोड़ा सा, अब अक्सर लोगों को क्लियर हो गया होगा कि देखिए Gen AI दिमाग है. दिमाग में डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर भी हो रही होती है, रिट्रीव भी हो रही होती है, लेकिन हमारा दिमाग सोचता भी है. Gen AI ऐसा फैम थोड़ी देर के डीप सीक को थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, वो सोच नहीं सकता. उसे इंफॉर्मेशन आप डाल दी, आप उसे रिट्रीव कर रहे हैं, उसमें डाल दी, आप रिट्रीव कर रहे हैं. तो काम जिसमें चल रहा है वो रीजनिंग मॉडल के ऊपर है. डीप सीक में आगे क्या तबाही मचाई थी कि इतनी ज्यादा शोर शराबा मच गया क्योंकि उसे रीजनिंग मॉडल लॉन्च कर दिया था. डीप सीक नया नहीं, डीप सीक का R1 लॉन्च हुआ था 2 हफ्ते पहले, उससे ज्यादा तबाही मचाती कि सोचना शुरू कर दिया था. That's where the real problem starts. Actually, when you keep on asking question, it will keep on prompting you for the answers. तो एक बात है कि जो लोग भी Gen AI यूज करना शुरू करेंगे उनके जरूरी है कि उनकी इंग्लिश अच्छी हो, इंग्लिश सीखेंगे और उसके बाद आपको सवाल करना आना चाहिए. जहन में क्या सवाल करना, हमारे बड़े सिखाया करते थे सवाल करना बुरी बात है. मैं कहता हूं सवाल करना अच्छी बात है, सवाल करना सीख लें, बिकॉज जितना अच्छा आप सवाल करेंगे उतना अच्छा आपको जवाब देगा. अगर आपका सवाल भी जगह जहाँ पे आपको जवाब आता है कि कॉग्निटिव स्किल्स उस वक्त आती है कि आपको सवाल करना आना चाहिए. अगर आप सवाल नहीं कर सकते तो आपको Gen AI से अच्छा जवाब भी नहीं मिलेगा. तो ये जरूरी है कि आप सब लोग, चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे बड़े हो, उनको Gen AI यूज करना चाहिए. जब ChatGPT यूज करें आज कितने लोगों को पता है कि आज क्या लॉन्च हुआ है? आज ही कल अमेरिका का आज मंडे है, इसलिए आज एनी आइडिया कि आज के दिन क्या मेजर इनोवेशन आई है Gen AI के अंदर? एलन मस्क ने आज अपना Grok 3 लॉन्च कर दिया. Grok 3 is the reasoning model जो कि आया है, claimed as the smartest AI on the planet right now. क्लेम है, चेंज हो जाएगा. आप में से कितने लोग जानते हैं प्रोजेक्ट स्टारगेट क्या है? वेरी रिसेंट न्यूज़. हम कहते हैं हमें पता होना चाहिए, हम खाली रील्स देखते आगे बढ़ जाते हैं. रील्स ना देखें, काम की रील्स देखें. जो रील्स आप देख रहे हैं वो नहीं देखें. तो होता क्या है कि प्रोजेक्ट स्टारगेट वाज समथिंग दैट ट्रम्प अनाउंस्ड ऑन अबाउट 2 वीक्स बैक. उससे कहा कि OpenAI और Oracle एंड बैंक कंबाइन टुगेदर $500 बिलियन के इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बेसिस पे हम डाटा सेंटर्स बनाएंगे जहां से मिलेगा मैप का कि प्रीवियसली होगी AI के ऊपर और Gen AI के ऊपर. दैट वाज द वेरी अनाउंसमेंट. ये एक हफ्ते बाद क्या हुआ? चाइना ने अपना DeepSeek लॉन्च कर दिया एंड दे वर सो सरप्राइज कर कैसे करेंगे. हम बात कर रहे होते हैं GPUs कहां से आएंगे. हमारे पास एम्बार्गो लगा हुआ है, यू नो कि वी कैन नॉट हैव द GPUs. हमें गेमिंग के लिए GPU चाहिए होता है 807, तो वो आपको 6 महीने लगते हैं लेने. मेरा बेटा को वेरी मच गेमिंग इज फास्ट है, वो उसे कहीं से GPU मंगवाया था, 6 महीने लगे उसके बाद आने में ग्रे मार्केट से, और वो 4-3 लाख रुपए गेमिंग 407. लेकिन 407 के ऊपर
भी आप डीप सी का लर्निंग एलएलएम चला सकते हैं। तो ये आपके ऊपर आप करते क्या हैं, आप घर पे गेमिंग सर्वर ले उसके बाद एलएलएम बनाए खुद एलएलएम जी बना सकते हैं ऐसा चला, लेकिन स्टूडेंट ऑफ दिस एज इन दिस एरा नीड टू गेट इनटू एआई विद फुल थ्रॉटल। मेरा सजेशन ये है भूल जाए सब कुछ, असाइनमेंट एआई से करके देते रहे टीचर्स, सॉरी टीचर्स, लेकिन ये सी दिस इज समथिंग मोर अबाउट लर्निंग। रिमेंबर लर्निंग की कोई हद नहीं है, और इस वक्त ये कहना कि मैं लर्न नहीं कर सकता कि इज द मोस्ट स्टूपिड आर्गुमेंट यू कैन गिव। देयर वाज सो मच अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पर उतनी ज्यादा डाइवर्जेंस भी आ रही है। आप YouTube पे आप नहीं कहते YouTube पे आप कुछ देखते बैठे हैं, आप कुछ नजर आता है, वहां चले जाते हैं, you go on and on, you have to discipline yourself। तो वो जो बेसिक कॉग्निटिव स्किल्स के तो वो रहेंगे। ड्राइवरलेस जब कार आ जाएंगी तो ड्राइवर से क्या होगा, कहां जाएंगी कॉग्निटिव स्किल के आपके गेयर का लगाने। आप में से जो लोग गेयर मैनुअल गियर से गाड़ियां चलाते होंगे, उसके बाद जब आप ऑटोमेटिक कार्स पर आए होंगे तब तो वो गाड़ी चलाना मुश्किल लगता है। वही ना आज तो आप गाड़ियां चलाना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब आप कहते हैं कि मैं ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने का आदी हो गया, तो कॉन्फिडेंस से खत्म नहीं होती, दब जाती है। लेकिन जैसे आप दोबारा थोड़ी सी गाड़ी चला दी, झटका लगता है, 2-3 बार बंद होगी, फिर चलाना शुरू कर देगी। तो कॉग्निटिव स्किल को छीनेगा नहीं आपसे, तो एआई वोंट टेक इट, बट यस एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2 to 20% जॉब्स डिस्प्लेसमेंट होने का खदशा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब नहीं खत्म हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आज से 3 डिकेड्स पहले इंटरनेट आया था, सब कहते थे इंटरनेट आने के बाद नौकरियां खत्म हो जाएंगी, नौकरियां नहीं खत्म होंगी, नौकरियां ट्रांसफॉर्म होंगी। Same way things will transform। लेकिन अगर 10% भी डिस्प्लेसमेंट हो गई, it's a huge number। 10% of the world global jobs अगर डिस्प्लेस हो जाती है AI की वजह से, then it's a big issue for the entire humanity। So these are challenging times। What you can do is कि हम से बहस करते रहे, अगर we learn more and more of AI, जितना सीख सकते हैं सीखें, जितना यूज कर सकते हैं सीखें। Any other question? Hope I address your question। A lot of students had this question and they did not ask directly, but they directed it to me. Sir, these are the best students in Pakistan from NASP APC, the top university in engineering. And mashallah, you are also all from very prestigious institutions and organizations. Sir, can you please comment and brief on regarding jobs, internships, and such opportunities, because that's the first priority of every student, I think. Everyone has that question. मैं आपको कुछ कर रहा था। ये अच्छा है कि आपने ये वाला डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। I like to take it, but we like to बहुत बोल गया हूँ तो बोले, but I will not have the answer. My favorite question. whatever I was asking. Please hold the mic closer. Hey, go on. Hello. So when I was sitting over there, I asked him that what do you do for resourcing? और मैं आपको बताऊं, and this is something which organizations have. This is the biggest challenge that they are facing today. The challenge is to get Generation Z to work for some organization. This is a challenge. And why this is a challenge? There are multiple reasons. Lately, with the rupee devaluation, the parity check, the rise of fever, government ने DG skills का एक program launch किया. They had completed probably 12 batches of it. Many of the people are earning big time with no experience altogether. But still, we have a lot of workforce that is still waiting for the opportunity to get into the corporate sector. I think the corporate sector is pretty much open. Every corporate sector has an NTP program, an NTU program. They are training people to get into the institution and do something about it. The main thing is that academia is really training, unka jo apna career development wing hai, is it really harnessing the student? Are they really harnessing them to the fact that where are the opportunities? What areas can you really tap in? What if you want to tap into some area? What exactly do you need to do in your 3rd and 4th years? Where exactly you should be placed up? You need to have some connections. You need to have some MOUs so that you can land to a place much earlier. So the brief answer for
for your query is that there is a lot of opportunity in the organizations. I'm heading cybersec audits, information systems and OT audits, and power generation audits. So I have people working under me who are computer grads, electrical engineers, economic engineers, mechanical engineers. So the requirement is immense. The thing is, what we expect to look into an incumbent and what does the incumbent brings to the office. This is where the gap is. And how we can reduce this gap is to have good co-op programs. जब तक आपके co-op programs institutions level पे नहीं होंगे, आपकी workforce जो निकल रही है बाहर, उसको अंदाजा नहीं होगा कि what exactly they need to do so they can have a placement in any organization they would love to work for. मैं आपको बताऊं इस वक्त पाकिस्तान में it's not about just take organizations as a buyer market and you as a seller. Right now it is a seller's market. But the seller doesn't want really to work to get himself a good price. Instant gratification is something you have to move away from. Okay? So there are opportunities. He has an MTU program. उसके हर साल runs होते हैं. They come, I believe, to NUST as well. They go to NED as well, IEA as well. So we collect as students. We not collect. We actually evaluate students through a rigorous program. But the end of the thing is, are you really prepared for that thing? And we are looking for you guys. There is no point. Believe me, there is no point of not looking up to you guys. But you need to be a little prepared on what you want from the organization that you are pursuing, and then you have to have 1, 2, 3 steps what you need to do. अच्छा एक चीज जो अभी सवाल मैंने पूछा था cognitive skills पे, just like to add one thing, I was recently, this is a real concern. This is a concern is that human cognitive skills are certainly on the decline. ये decline पे हैं और bots are a reason for this thing to decline. लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत सी यूरोप के अंदर और यूएस में कुछ स्टेट्स के अंदर ऐसी रेगुलेशंस आ गई हैं जिसके अंदर वो बॉट्स का एक्सेस इन अर्ली इयर्स ऑफ एजुकेशन पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. दे आर एक्चुअली डूइंग इट बिकॉज दे फील कि एक कॉन्सेप्ट है टेक फ्यूडलशिप का. तो जो टेक फ्यूडल लॉर्ड्स हैं ना, दे आर यूजिंग यू एज अ प्रोडक्ट. सो हाउ कैन यू बी अ गुड प्रोडक्ट if you just don't think on your own? तो मैं आपको इसको कहूँगा कि क्या इसका जवाब ये है कि आज आप AI यूज करना छोड़ दें? तो नहीं, इसका जवाब ये नहीं है. इसका जवाब ये है कि AI यूज करते रहेंगे तभी आपका जहन ये कॉग्निटिव स्किल कम नहीं होगी. नहीं, जवाब नहीं है. मेरा अपना जो असेसमेंट है उसमें ये है कि when you ask a bot, when you ask a LLM, when you ask any model that actually services these things, you need to be equipped to know if the answer is right or if the answer is wrong. And this, my friend, is the term called responsibility. When it is going through an assignment of yours, आप अपने टीचर से ये नहीं कह सकते कि ये चैट जीपीटी ने लिख के दिया था तो ये सही होगा, आप बनाते. टीचर ये कहेगा कि ये आपने लिखा है, अब आप बताएं कि ये सही है या नहीं. So, is it really easy to proxy someone else's work as your work? If the answer is yes, then fine, your cognitive skills are certain to go down. But if the answer is no, then you, believe me, you have to work at least twice after using a bot. Because you need to be responsible for your thing. And I'd just like to end. When in this thing, I picked up, I was listening again to Asim and he was bragging about one thing. You need to listen to the third argument. I think the mic is not allowing me to speak. So, Why don't we put that back? hello. So, when I passed my 10th grade,
this is for your students. My grandfather called me. I passed my 10th grade, my younger brother the 11th grade. And we were happy because we were supposed to get a gift from him, some money, I believe, some toy, some recognition, some pep talk. And he being a person of very less words, he gave us a piece of paper. And on that paper was a statement that was given to me. And I would like to share it with you because that paper has shaped the way I am today. It said that it is not easy growing up in today's world. There are so many choices and new things to try. And there is so much pressure on you to do what your friends are doing. And that is why I am so proud of you for maintaining your individuality by saying no, even when it's not the popular thing to say. You are not a child anymore, and you're starting to take responsibility for your own actions and decisions. This was given to us as a gift from my grandfather. And this is something that I was a bit confused, disappointed. We were expecting a gift, it never came, no money. So, and we were just handed over this piece of paper signed by him, and this is, I believe, 1992, I believe, 92. So, but my father was wise enough, he framed it out, and he put that thing in my room. And in Edward we used to read, and that actually has shaped me the way I am today. So the point is that AI ho, transformation ho, responsibility is the one thing that you need to carry. And this is something which the workforce of today has to embrace quickly and efficiently. Thank you. Thank you. We could have summed it up better. Are there any closing comments from Pranav Zavayasa? Okay. Basically, that's the thing you must read with the last name. मेरा हमेशा से एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब हमने अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर जब हम वेंचर कर रहे थे, जब हम ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोफेशनल ज्वाइन किया, वहाँ पर हमेशा एक चीज मिसिंग एलिमेंट क्या होता था कि यार हम करें क्या? प्रॉब्लम ये होती थी कि यहाँ पे इनिशियल लेवल पे हमें अपने जो गोल है उसको हम सेट नहीं कर पाते। लेकिन आज जो है टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत सारी चीजें खुद ड्राइव कर सकते हैं। पहला चीज मैं पहले हमेशा से मैं जितने भी मेरे कोलीग्स हैं, जितने मेरे टीममेट्स हैं, उन लोगों को हमेशा कहता हूँ कि फर्स्ट तो आपके पास टू एटीट्यूड होना चाहिए कि एटलीस्ट हमें करना क्या है, हमें करना है वो चीज। हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कि हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में सुन लिया, एआई के बारे में सुन लिया, और हम जो है वो ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि यार मेरे दोस्त ने किया है या मेरे फादर ने किया था, तो मैं भी इस चीज को ज्वाइन करूंगा। पहले तो अपना आपको ऑर्गेनाइज करें, अपना आपको इस चीज को सॉर्ट आउट करें कि हमें करना क्या है। सेकंड, ये जितने भी टूल्स हैं ये आपकी हेल्प के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। प्रॉब्लम ये होती है कि हमने आज चैटजीपीटी का नाम सुना और अपने असाइनमेंट जितने भी जो भी पोस्ट वगैरह जो है चैटजीपीटी ड्राइव करना शुरू कर दिया। जो इनिशियल पैनल के अंदर हुआ था कि यार आप इसको डिफाइन एंड ट्यून करने के लिए यूज करें, रादर देन कि हम इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। हमारी जो क्रिएटिव थॉट्स हैं, क्रिएटिविटी है, वो गेन होना शुरू हो जाती है। क्या आप सोचना खत्म हो जाते हैं और हम टूल डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा मैं हमेशा डिस्करेज करता हूँ कि पहले ठीक है आप अपनी आर्टिकल्स लिखते हैं, अपनी ईमेल्स राइट करें, और ईमेल्स राइट करने के बाद फिर उस चीज को आप हेल्प करें कि उसको कोई प्रोफेशनल वे के अंदर आप किस तरह उसको कर सकते हैं, और उसको लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी चीज को हम टूल्स को यूज करें। जो बात की थी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हम किस तरह रिक्रूटमेंट वाला प्रोसेस वाले अपॉइंटमेंट वगैरह कराओ, तो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरा हमेशा से ये रहा है कि अगर स्टूडेंट्स के अंदर या कोई भी कैंडिडेट जो है उसके अंदर ये स्किल्स है कि वो लर्निंग स्किल्स है उसके अंदर, तो हम इस चीज को मैं हमेशा एनकरेज करता हूँ और मैं उनको जो है इंटर्नशिप लेवल के ऊपर हमेशा वो जो है हायर कर देता हूँ। और उसमें होता ये है कि सबसे कि हमारे पास डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, और बस एक लिस्ट है कि हम कहते हैं कि ये वो सारे चैलेंजेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिशियल हैं और आपके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही होती है, तो हम लोगों को इस तरह एंगेज करते हैं, असाइनमेंट्स इस तरह देते हैं, और वो उस चीज को कर जिस तरह वो अडॉप्ट करते हैं और उसके लर्निंग अपनी
अपनी जो है वो स्किल्स को एनहांस कर लें। तो इस तरह हम अपनी रिक्रूटमेंट का वैसे में जितनी भी मेरी टीम है उनको हमने इसी तरह स्किल्स इंक्रीज किए और पॉलिश किए। लास्ट थिंग कि हमारे पास शॉर्ट टर्म गोल नहीं होने चाहिए। मैं इस चीज को हमेशा करता हूँ। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं आप अपने कैरियर के अंदर उस फेज के अंदर होते हैं जहाँ आप आपको लर्निंग कर रहे होते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को। और आपको प्रॉब्लम ये होती है कहते हैं यार 6 महीने बाद मैं नई जगह पे चला जाऊँ, अभी मैं 2 महीने यहाँ पर नीचे नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूँगा, दूसरे लेवल को ज्वाइन करूँगा, तो वहाँ पर की लर्निंग जो है ना वो स्टॉप हो जाती है। आपका आपके पास आपको बहुत फोकस होना चाहिए, होना चाहिए। और सेकंड आपके पास एक कोई भी स्किल्स है, कोई भी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें और उसको आप कंप्लीटली उसको सीखें। rather than आप बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को सीखना शुरू कर दें और पता चलेगा कुछ भी नहीं आ रहा, तो एंड अप वो आप बिल्कुल जीरो होते हैं। तो आप कोशिश करें अपनी स्किल्स पॉलिश करें इंस्टीट्यूट के लेवल से ही, उसके बाद जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो आप उसको जो है इम्प्लीमेंटेशन फेज पर आते हैं। तो ये इसमें भी एडवाइस होगी। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी इंटेंशिप और प्रोग्राम जो है वो कार्य होगी। इसी को जो है ना मैं आगे ऐड करूंगा कि अगर जो है जैसा कि हमारे कलीग ने बताया कि आप जो है चैट जीपीटी से असाइनमेंट बनाएं और जो जमा करा दें, लेकिन आप अपनी लर्निंग को दूसरी तरफ जारी रखें। तो अगर आपने असाइनमेंट बना दिया है तो कम से कम आप उस पर जो है क्या नाम है अपनी थॉट्स को क्लियर करें कि ये इसमें अगर कोई काउंटर क्वेश्चन मुझे करता है तो मैंने क्या जवाब देना। अगर कोई टीचर आपसे उसमें काउंटर क्वेश्चन कर रहा है और आप बिल्कुल ब्लैंक हैं तो आप फेल। सही है। अगर आप उसके तमाम सवाल के जवाब दे रहे हैं मींस आपने जो असाइनमेंट बनाया वो जो चैट जीपीटी ने बनाया, जो क्लास आपने ली है ना टीचर की, वो आपने 100% ली है, तभी जो है ना आप उसके जो है क्वेश्चंस के आंसर दें। तो मेरा जो है परसेप्शन ये था जब मैं पढ़ रहा था कि क्लास में जो है ना मैं 100% जो है ना अपने आप को अलाइव रखता था, ताकि जो है टीचर ने जो मुझे बताया और उसके बाद जो है ना मैंने वो समझ लेना सही तरीके से। उसके बाद मैं पढूं ना पढूं, सही है। मेरी मदर जो है मुझे बार बार बोलती थी तुम्हारा कल पेपर है तुमने पढ़ा है, तो मैंने क्लास ली थी, सही है ना। अब जो है वो मैं कर लूंगा, तो मैं कर लेता था, ठीक है। मेरे जो है कोई फ्लाइंग कलर्स नंबर नहीं आते थे, बट जो है क्लास का जो मैं लेता था वो उसी से जो है ना मेरा पेपर पूरा हो जाता। तो हमें टीचर पे बिलीव करना चाहिए, अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, सही है, और फिर हम जो है कर लेते हैं। तो ये है मेरा स्टूडेंट्स के लिए। तो एक और सवाल है एक्चुअली सर, आपने बिल्कुल हाईलाइट किया कि देयर इज अ गैप बिटवीन जो इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है हमसे और जो हम डिलीवर करते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ एनी सर्वर से दैट आप जैसे इंटर होंगे ये पहली और ये जवाहर ऑडिटोरियम है, तो इसके लेफ्ट साइड पे आपने एआई लैब देखी हो, काफी उसका बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। तो our university is doing our best, but I think आप लोगों की तरफ से भी there should be some labs, there should be some correspondence, ताकि our university produces the students and the employees that are as per your requirement. तो उसके लिए आपको definitely आपकी तरफ से इनपुट चाहिए होगा, आपकी तरफ से वर्क चाहिए होगा, ताकि हम एग्जैक्टली वही प्रोड्यूस करें जो आपको रिक्वायर्ड है। सो आप सबसे एक क्वेश्चन है, व्हाट आर यू गाइस वर्किंग ऑन दैट एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? इसलिए जो है ना मैं थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि करिकुलम जो होता है ना हमारे पास जो है मेरे ख्याल में 42 से 48 कोर्सेज होते हैं, सही ना। उसमें से आधे काम के होते हैं, सही ना, आधे काम के नहीं होते। यानी कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे किसी काम की नहीं, इस्लामियात ठीक है हमने पढ़ ली, किसी काम का नहीं, पाकिस्तान स्टडीज किसी काम का नहीं है, मेरे जो है प्रोफेशनल लाइफ, सही। तो हमारी यूनिवर्सिटीज को जो है ना फोकस ये करना चाहिए कि हमारी जो इंडस्ट्री में क्या चीज की रिक्वायरमेंट है उसको इनकॉर्पोरेट करें अपने जो है ना सिलेबस में, सही है। तो जो चीज काम की नहीं है, देखिए हम जो है एक इंडस्ट्री के लिए बंदा तैयार कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, सही है, तो उसको वही ट्रेन करें, वही स्किल्स प्रोवाइड करें जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, ना कि जो है हम उसको मार्क्स में जो है ना उलझा दें कि जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में वो अच्छे नंबर ले लेगा तो उसकी जीपीए ऊपर चली जाएगी, वो उसमें जो है ना अलग से टाइम दे। क्यों ना हम उसके स्किल्स को डेवलप करें। तो ये यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि उसके स्किल्स पे फोकस करें, क्योंकि वो स्किल लेने के लिए आया है बंदा। इसमें दो पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है।
और आप सब हजरात ने भी जो उस पर रोशनी डाली स्पेशली। सो एक चीज होती है हाउ टू क्लोज द कन्वर्सेशन, हाउ टू क्लोज द डील। इन्होंने एक लैब कायम कर ली और इंस्टीट्यूट को, यूनिवर्सिटीज को, एकेडमिया को कौन बताएगा? दिस इज अनदर क्वेश्चन, ठीक है। मैं बात को बिल्कुल समराइज करूंगा, बहुत लंबी डिबेट हो सकती है इस पे। मैं जब ओ लेवल्स करके निकला मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है, बट मैंने कंसल्टेंट्स ढूंढे, मेंटोर्स बनाए, फिर मुझे पता चला मुझे क्या करना है। देन आई डेवलप्ड अ स्किल कि मुझे पता है कि मुझे लाइफ में सेल्स एंड मार्केटिंग करनी है। और एक कहावत है कि किसी भी फन में कमाल हासिल करो, काफ हटा दो फिर माल रह जाएगा। अच्छा, वो वाला माल नहीं जो नोटों वाला, वो कोई और ले जाता है, ठीक है। माल मींस योर ओन स्किल which is commendable and credible for your own professional growth. A, B. तो मैं यहाँ इस फोरम पे CXO ग्लोबल से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके पास डेटाबेस है, कनेक्शन है CEOs के और ऑर्गेनाइजेशंस के, तो हम आप लोग तो फिर आपने लैब कायम कर ली। मुझे ये मेरा सवाल अपने आप से भी है और गवर्नमेंट से भी ये सवाल है कि क्या एकेडमिया में नॉट जस्ट AI, बिकॉज जैसे सर ने फरमाया कि every day it's an evolving matrix all around the globe कि जी हम तो इंटरनेशनल, आज इलॉन मस्क ने ये कह दिया तो आज ट्रम्प ने ये कह दिया तो सब हो गया। तो बट उस चीज को इनकॉर्पोरेट, लेट्स से आपने AI या ML मॉडल्स की सब्जेक्ट्स आपने एंटर कर दिए 2026 में, तो ठीक है, लेकिन 2026 में आपने एंटर किया तो 2 महीने ही आपने पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ डीप सी या ब्लू व्हेल या कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। सो यू नीड टू इनकॉर्पोरेट दैट इन अदर इंस्टीट्यूशन। आपकी यूनिवर्सिटी A, B, C, मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेता, सब ने जो प्राइवेटाइज्ड है which are actually generating good students, but talk about those B category या C category which are in the far-flung areas of Punjab, of Sindh और Balochistan. So what is happening over there? जैसे कि मेरे मौजूद साथी ने कहा कि उसमें सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट्स हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए या हमारी आइडियोलॉजी के लिए इट्स इम्पोर्टेंट, बट व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग आज एक मैट्रिक, देखिए देयर इज अ क्लियर डिफरेंस। हम थोड़ा सा बैक ट्रैक कर लेते हैं तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन, मैं ये नहीं कहता कि मैट्रिक वाले तो CEOs भी बन के बैठे हैं, आज वो पढ़ाई और थी, लेकिन आज एक मैट्रिक किया हुआ बच्चा, और क्यों लोग पेरेंट्स कहते हैं कि व्हाई वी वांट आवर किड्स टू गो फॉर कैम्ब्रिज और मतलब लंदन यूनिवर्सिटीज या जो भी बोर्ड है, तो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस। You can see the confidence, you can see the approach, you can see the education level, you can see the charisma of that student while moving towards that destiny. अच्छा, destiny कौन सी destiny? Destiny जो उसके parents बना रहे थे वो discover just like you, but there are underprivileged students. We have to also think about that. So Allah आप लोगों को तरक्की दे, and I just want CXO Global to bridge something between our organizations and the academia. Because this is स्टूडेंट का काम नहीं है, स्टूडेंट देखिए पढ़ेगा, मैं स्टूडेंट का जो एडवोकेट हूँ कि मेरे बच्चे हैं तो उस पे वो लोड होता है कि उसने पढ़ना है, एग्जाम में पास होते हैं, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ आई एम सॉरी मुझे कहते थे, मुझे तो डंडे और चप्पल से मार पड़ती थी बचपन में, लेकिन मैं अपने बच्चों को तो अच्छा बीमार होके मत जाओ, हम एक रिक्वेस्ट डालते हैं स्कूल को कि आप जो भी एग्जाम है वो नेक्स्ट वीक ले लें, एंड दिस इज हैपनिंग विद माय डॉटर, शी इज एट होम टुडे, उसकी तबीयत खराब थी, मैंने उसको कहा कि स्टे एट होम, आज की बात बता रहा हूं। सो नाउ द थिंग्स इट हैज 360 डिग्री चेंज, यू नीड टू पुट देम सम कंफर्ट लेवल। ऑफिसेस की वो ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं ताकि यार आपका जो आपके लोग हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वो फील करें। मतलब कई में हम जाते हैं, माशाल्लाह इन लोगों ने बड़ा रिवैम्प किया, सो दे आर प्रोवाइडिंग कंफर्ट टू द एम्प्लॉइज ताकि वो सुकून से काम कर सकें। अगर आप सुकून से काम नहीं कर पाएंगे तो यू कैन नॉट प्रोवाइड दैट प्रोडक्टिविटी एंड एक्साइटमेंट इन योर वर्क, और वो रिफ्लेक्ट करता है। So anyways, it's a long debate, but we are open to help and support at any level. Thank you. And I think that आपका क्वेश्चन थोड़ा सेल्फ आंसरिंग इसलिए है कि अगर इंडस्ट्री यहाँ आई है अपना टाइम निकाल के on a weekday, that goes to show that they are interested in either coaching, sharing, and just being present in academic spaces which you have created. So I think that in itself is अब इस opportunity से कितना फायदा आप लोग उठा सकें as a campus, I think that's the whole point. As I said earlier, we are taking these campus conferences to multiple campuses around the city, and उसका मकसद यही है कि access जो हमारे पास है of technology leaders, of leaders who are really at the head of digital transformation, enterprise transformation, and on
on the flip side, how do we bring them to people? Because as I said, talent is a problem जो हर एक को है. Whether you are a technology service provider or you are someone implementing that change, talent is a big challenge. हमें भी उतना ही challenge है जितना आप लोगों के लिए. So I think the whole purpose of this program is to be able to play some contribution. I'm not saying कि पूरा gap bridge हो जाएगा through these programs, but at least एक अच्छी initiation है. So thank you, of course, to PNEC NUS for being our gracious host for today, and our program patrons. I would like to now conclude the panel discussion and thank all of you for taking out the time and sharing your insights. Job query, I don't know your name. Osama, if you can, what I can respond to this, if the institution has developed certain facilities and they want to have a life, तो आप उसको थोड़ा सा organize करें. It's very difficult for organizations to get back to their academia unless they have a pressing need and they know the solutions out there. And they can have this solution at a niche cost. Only then they are going to come to you. अगर आपके पास एक facility है, तो I would suggest कि जो आपका career development department है और जो आपके पास workforce है और जो talent skill है आपके पास और जो facilities आप ही provide कर सकती हैं, आप उनके हिसाब को लेके आप organization से contact करें. They have certainly have people who are tasked to do these collaborations. And if you approach them out, you'll be surprised to see the response that you get. Because I think industry की ज़्यादा need है और academic institutions की need कम है, industry की ज़्यादा need है. Exactly. मतलब मैं आज सुबह, this is the first time that I came to PNEC. और जाहिर सी बात है वो being the first time I didn't know where the auditorium was to have fully campus in India उसके अंदर. It's one of the first few universities to have a master's program in cybersecurity, so that in itself is. And when I was just roaming around, I saw an AI lab, and I saw cybersecurity being written over someplace. I don't exactly remember what it says. But I was just thinking that if you have something that carries as a suffix, which is lab or which is research, if you have, let's say, the transaction needs to be completed. If you have developed something else, it's like having a gift and not giving to someone. So why did you buy that gift? So if you have a facility, then engage out, reach out to organizations. They have a lot of work that they can hand over. All which is needed right now today is collaboration. It is missing. So I think this is one thing that I can offer. You can always, I'm always available. Sir has my contact. We can always reach out to me. After LinkedIn research, you can drop me a message. I can connect with people and try to make sure that you actually utilize those resources to whatever extent you would like to utilize them. And we can certainly work.